جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے جی اسٹوڈنٹس؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہے؟ اچھا جی، آج ہم مائٹوسس میں پروفیز پڑھنے جاتے ہیں اور پروفیز میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایونٹس واقع ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ پیچھے ایک ٹاپک ریوائز کریں گے اور وہ کیا ہے؟ انٹرفیز ہے. ہمیں پروفیز پڑھنے سے پہلے انٹرفیز کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو سیل سٹارٹ ہو رہا ہے، ڈویژن کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو وہاں پر انٹرفیز میں ایک فیز ہے جس کا نام ہے ایس فیز، اور اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر ایک ڈی این اے سے 2 ڈی این اے بن چکے ہیں. تو پروفیز شروع کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیل کے اندر جو جینیٹک مٹیریل موجود ہے ڈی این اے کی شکل میں، وہ ڈپلیکیٹ ہو چکا ہے. دوسری چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس سیل کے اندر موجود ہوتا ہے کرومیٹن نیٹ ورک، اور یہ ڈی این اے اسی کرومیٹن نیٹ ورک کے اندر موجود ہوتا ہے. یعنی کرومیٹن نیٹ ورک اس کا ایک حفاظتی دیوار ہوتا ہے جس میں ڈی این اے موجود ہوتا ہے. اب ڈی این اے ڈپلیکیٹ ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کرومیٹن نیٹ ورک جو ہے وہ بھی ڈپلیکیٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ابھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس پروفیز سٹارٹ ہونے سے پہلے ایس فیز میں ڈی این اے اور کروموسوم دونوں ہی ڈپلیکیٹ ہو چکے ہیں. جب ہم لفظ کروموسوم استعمال کرتے ہیں تو ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ جو کروموسوم ہے وہ ہم اس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں. اگر کوئی کروموسوم آپ کے سامنے اس انداز میں بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اس کے اندر ڈی این اے ڈپلیکیٹ نہیں ہوا، یعنی اس کے اندر ایک سنگل سالم ڈی این اے موجود ہے. لیکن جب آپ اسی سٹرکچر کو اس انداز میں کہیں دیکھتے ہیں یا بناتے ہیں تو اس لفظ کا مطلب یا اس سٹرکچر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو ڈی این اے ہے یہ ڈپلیکیٹ ہو چکا ہے، یعنی ڈبل ہو چکا ہے. تو یہ جو ایک پارٹ ہے ڈی این اے کا یہ یہاں پر موجود ہے، یہ جو دوسرا پارٹ ہے ڈی این اے کا یہ یہاں پر موجود ہے. اسی طریقے سے یہ جو سٹرینڈ ہے ڈی این اے کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پر ڈپلیکیٹ ہو چکا ہے، یعنی ڈبل ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ جو ایک حصہ ہے ڈی این اے کا یہ یہاں پر ہے، اور یہ جو دوسرا حصہ ہے ڈی این اے کا یہ یہاں پر موجود ہے، اور یہ آپس میں کنیکٹ ہے یہاں پر. تو اب یہاں سے آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اس سنگل کروموسوم کی حالت میں اس کی یہ جو دونوں آرمز ہیں انہیں ہم سمپلی کیا کہتے ہیں؟ کرومیٹڈز کہتے ہیں. سینٹر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سینٹرومیئر کہتے ہیں. جبکہ اس کنڈیشن کے اندر یہ اور یہ جو بازو ہے دونوں، یہ اوپر والے اور یہ جو ہے آپس میں یہ دونوں اور یہ دونوں، انہیں ہم کہتے ہیں سسٹر کرومیٹڈز. انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ سسٹر کرومیٹڈز. تو جب ہم پروفیز کو شروع کریں گے تو تمام بکس کے اندر جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو پروفیز کے اندر ہمیں یہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کروموسوم اپیئر ہوتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ دے کنسسٹ آف سسٹر کرومیٹڈز. وہ سسٹر کرومیٹڈز پر موجود ہوتے ہیں. وہاں پر یہ لفظ نہیں لکھا جاتا کہ وہ کرومیٹڈز پر مشتمل ہوتے ہیں، کیونکہ کرومیٹڈز صرف اس حالت میں ہوتے ہیں جبکہ ابھی ڈی این اے تقسیم نہیں ہوا ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ڈفرنس ہے جسے آپ نے اس ٹاپک کے اندر آگے جا کر یاد رکھنا ہے. اسٹوڈنٹس ابھی ہم چلتے ہیں پروفیز کے ایونٹس کی طرف. تو پروفیز کے ایونٹس کو ہم بعض بکس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ ارلی پروفیز اور لیٹ پروفیز، یعنی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. شروع والے جو مختلف قسم کے ایونٹس ہیں اور اینڈ پر جو ایونٹس ہیں وہ دونوں. تو بہرحال ہم اس کو ایک ہی کنٹینیو پڑھیں گے. اور یہاں پر سب سے پہلے جو ایونٹ واقع ہوتا ہے جیسے ہی ہمیں یہ سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں سینٹریولز، the centrosomes divides، تقسیم ہو جاتے ہیں into centrioles. سینٹریول میں تقسیم ہو جاتے ہیں. The centrosome divides into centrioles. جیسے ہی سینٹروسوم سینٹریول میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں this is
the beginning of प्रोफेज या अर्ली प्रोफेज, ठीक है ना। यानी सेल के अंदर जब तक ये तकसीम नहीं होता, इससे पहले जितने भी इवेंट्स चल रहे होते हैं वो सब के सब इंटरफेज में शामिल हैं। लेकिन जैसे ही ये इवेंट स्टार्ट होता है तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर इंटरफेस जो है वो एंड हो गया है और अब प्रोफेज शुरू हो गया। तो बाज़ औक़ात एमसीक्यूज वगैरह के अंदर भी यही किस्म का सवाल आ जाता है कि कौन सा स्टेप जो है वो इंडिकेट करता है द बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज, ठीक है ना। सो द बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज इज इंडिकेटेड बाय द डिवीजन ऑफ सेंट्रोसोम सेंट्रियोल। अच्छा, पास जगह पर सेंट्रियोल ही लिखा हुआ है और वहां पर लिखा हुआ है कि द सेंट्रियोल्स बिकम डुप्लीकेट। जैसे हम कहते हैं डीएनए डुप्लीकेट, क्रोमोसोम डुप्लीकेट, इसी तरीके से बात जगह पर लिखा हुआ है कि दिस सेंट्रियोल्स बिकम डुप्लीकेट्स, डबल हो जाते हैं। And this is the beginning of, और यही जो है प्रोफेज का क्या चीज है, इब्तिदाइया है, स्टार्ट है। तो सबसे पहले जो इवेंट वाकया होता है प्रोफेज के अंदर वो क्या है, ये है न्यूक्लियस सेंटर के अंदर, और यहाँ पर इसके बाहर किसी एक जगह पर आप क्या बना ले, किसी एक जगह पर आप बना ले सेंट्रोसोम बना ले, और जैसे ही वो सेंट्रोसोम क्या होता है, डुप्लीकेट हो जाता है। तो ये ऐसा है कि इसे हम क्या कहते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज। तो जैसे ही यहाँ पर बनते हैं तो these सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग एन अपोजिट डायरेक्शन। एक सेंट्रियोल यहाँ पर चलना शुरू कर देता है और एक सेंट्रियोल यहाँ पर। आहिस्ता आहिस्ता ये मूवमेंट शुरू कर देते हैं और मुखालिफ सिमत में जाना शुरू करते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जब ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट आ जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो सेंट्रियोल है इनके ऊपर क्या शुरू हो जाते हैं, फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। ये छोटे छोटे से धागे शुरू करते हैं, फाइबर शुरू करते हैं। ऐसे फिलहाल स्टार्ट ले लेते हैं, अपने फाइबर्स को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं और इस वक्त इस शक्ल के अंदर ये एक स्टार की तरह नजर आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। तो यहाँ पर दो तीन डिफिनीशन, तीन चीजें आपके सामने आ रही हैं। पहले तो जो सेंट्रियोल है वो यहाँ पर तकसीम या डुप्लीकेट होते हैं और मुखालिफ सिमत में चलना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज, जैसे ही ये मुखालिफ सिमत में चलना शुरू करते हैं ये फाइबर बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि अभी फाइबर छोटे होते हैं लेकिन स्टार्ट कर लेते हैं। इस हालत के अंदर हर एक जो शक्ल होती है ये एक सितारे की तरह, स्टार की तरह नजर आती है, जिसकी वजह से इसे हम एस्टर कहते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर बिगिनिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसके अंदर मरहला है वो क्या है कि ये जो हमारे पास वहां पर क्रोमेटिन नेटवर्क मौजूद है, यहाँ पर 4 नंबर पे हम लिख सकते हैं कि द क्रोमेटिन नेटवर्क, वो वाला, दिस कंडेंस एंड कॉइल या फोल्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, ठीक है। वहां पर जो क्रोमेटिन नेटवर्क है उसमें कंडेंसेशन शुरू हो जाती है और वो तब्दील होते हैं किस चीज के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है आपके पास क्रोमोसोम जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर जब हम यहाँ पर क्रोमोसोम ड्रा करेंगे, लिखेंगे, इसकी डायग्राम बनाएंगे तो हम क्रोमोसोम की इस किस्म की फिजिकल शक्ल को यहाँ पर ड्रा करेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो क्रोमोसोम है ये यहाँ पर डुप्लीकेट हो चुके हैं और इसकी ये जो 2 आर्म्स हैं इन्हें हम आपस में क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर और याद रखें कि जब ये यहाँ पर मौजूद होते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में, यानी धागों की शक्ल में मौजूद होते हैं, तो उस वक्त इनके दरमियान ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, उस वक्त ये सेंट्रोमियर इसके अंदर मौजूद नहीं होता। लेकिन जब ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये इस क्रोमोसोम की शक्ल में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं तो इन दोनों आर्म्स के दरमियान यहाँ पर एक प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं वो डेवलप हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये बना होता है किस चीज से,
किससे, प्रोटीन से, और उस प्रोटीन का नाम होता है काइनेटोकोर। और यहाँ पर ये चीज भी आप याद रखें कि जैसे ये डुप्लीकेटेड हालत में होते हैं तो यहाँ पर इनके अंदर भी एक डुप्लीकेशन मौजूद होती है, ताकि बाद में फ्यूचर के अंदर ये आसानी के साथ एक दूसरे से जुदा हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनके अंदर भी एक लाइन ऑफ डुप्लीकेशन मौजूद होती है, यानी कि ताकि बाद में ये आसानी से कट सकते हो। तो ये यहाँ पर मौजूद होता है किस चीज के अंदर, द क्रोमेटिन नेटवर्क। 4 नंबर पे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो कन्वर्ट या कंडेंस हो जाता है, कंडेंस हो जाता है किस चीज के अंदर, फिजिकल शक्ल के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसके बाद 5 नंबर जो फेज है जिसे हम कहते हैं लेट प्रोफेज, यानी प्रोफेज में जब हम ये सारा काम खत्म हो जाता है तो ये जो स्टेप्स आ रहे हैं, यहाँ तक जो स्टेप्स हैं, ये जो स्टेप्स है ये किस चीज पे अंदर होते हैं, ये होते हैं अर्ली प्रोफेज के अंदर। यहाँ से जो नीचे फेजेस है इसे हम कहते हैं लेट प्रोफेज। जब ये शक्ल हो जाती है कन्वर्ट, तो अभी आप देखें इसके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है जिसने इन क्रोमोसोम को होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, ताकि ये बाहर फिलहाल न निकले। लेकिन जैसे ही ये बन जाते हैं, तैयार होना शुरू हो जाते हैं, तो ये जो मेम्ब्रेन है इट स्टार्ट डिसअपियरिंग, डिसइंटीग्रेटिंग, डिसॉल्विंग। ये जो मेम्ब्रेन है ये यहाँ पर डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, गायब होना शुरू नहीं होती, डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। यानी मसलन इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं वो टूट जाते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं। प्रोबेबली कोई एंजाइमेटिक एक्शन, कुछ चीजें वाकया हो रही है जो इस मेम्ब्रेन को खत्म कर देती है और फ्यूचर के लिए इसको रखती है ताकि वापस फिर ये रीअपियर हो सके। तो ये मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ से डिसअपियर हो जाती है। अगली जो चीज इसके अंदर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद होते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, 2 न्यूक्लियोलस जिसे हम न्यूक्लियोलाई भी कहते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, यहाँ डिसॉल्व हो जाते हैं और ये रास्ता खाली करते हैं किस चीज के लिए, ताकि ये जो फाइबर है ये इन क्रोमोसोम्स के साथ बगैर किसी रोक टोक के कनेक्ट हो जाए। तो रास्ते में जो चीजें मुख्तलिफ हाइल होती है वो वहां से खत्म हो जाती है, मसलन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी खत्म हो जाती है और जो न्यूक्लियोलाई होते हैं वो भी डिसअपियर हो जाते हैं, ताकि जो माइटोसिस का रेगुलर प्रोसेस है वो मुतासिर ना हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि दे स्टार्ट डिसअपियरिंग। तो आखिरी जो 2 पॉइंट्स हैं वो क्या कह सकते हैं आप कि द न्यूक्लियर इन्वेलप या द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक, और इसके साथ साथ 6 नंबर पर आप ये लिख सकते हैं कि द न्यूक्लियोलाई, इन दोनों के सामने आप लिख सकते हैं स्टार्ट डिसअपियरिंग, दोनों जो है गायब होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और चीज आप शामिल कर लीजिए जिसे हम कहते हैं माइटोटिक। बाज़ बुक्स के अंदर लिखा होता है माइटोटिक अपरेटस। सवाल आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय माइटोटिक अपरेटस, माइटोटिक अपरेटस किस चीज को कहते हैं। तो माइटोटिक अपरेटस जो है दिस इज स्टार्ट बनना शुरू होता है, स्टार्ट कहां पर शुरू होता है, ये स्टार्ट होता है यहां पर G2 फेज के अंदर इसका अमल शुरू होता है। यही प्रोसेस जो है शुरू होता है किस चीज के अंदर, G2 फेज में शुरू होना शुरू हो जाता है। और माइटोटिक ऑपरेटर्स जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, 3 चीजों पर माइटोटिक ऑपरेटर्स जो है मुश्तमिल होते हैं। एक इसके अंदर मौजूद होते हैं सेंट्रियोल्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, यानी 2 सेंट्रियोल होते हैं। दूसरी चीज जो इसके अंदर शामिल होती है दे आर स्पिंडल फाइबर्स, दूसरी चीज जो है वो क्या है, स्पिंडल फाइबर। और तीसरे नंबर पे जो एक शक्ल बन जाती है जिसे हम एस्टर कहते हैं। तो असल में माइटोटिक ऑपरेटर्स जो है दिस कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल नंबर 1, नंबर 2 स्पिंडल फाइबर्स एंड नंबर 3 एस्टर। सेंट्रियोल क्या चीज है, सेंट्रियोल ऑर्गेनेलीज है जो कि सेंट्रोसोम से बने हुए होते हैं।
फाइबर्स किस चीज है? स्पिंडल फाइबर जिसे हम कहते हैं, धागे हैं। और ये जो स्पिंडल फाइबर ये बने होते हैं एक प्रोटीन से जिसका नाम है ट्यूबुलिन। ये स्पिंडल फाइबर बने होते हैं किस चीज से? एक प्रोटीन से जिसका नाम होता है ट्यूबुलिन। और एस्टर क्या चीज है? एस्टर इज द combination of centriole and the spindle fiber. Spindle fiber and centrioles are collectively known as ester. जिस वक्त एक सेंट्रियोल जो है वो इस शक्ल में होता है और अभी वो क्या बना रहा है? अभी वो सिंपली फाइबर बनाना शुरू कर देता है, तो इस कंडीशन के अंदर इसे हम क्या कहते हैं? एस्टर, which means star like। ठीक है, तो क्योंकि ये सेल के अंदर जब आप इसको मुशाहिदा करें तो ये एक स्टार की शक्ल में नजर आता है, तो इसी खासियत की वजह से उस वक्त इसे एस्टर कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो चीजें हैं जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं, ये अपोजिट पोल की तरफ रवाना शुरू हो जाती है। तो होप स्टूडेंट आपको प्रोफेस के मुतालिक कुछ भी जो मालूमात थी इंशाल्लाह हम ट्राई किए कि आपको कवर कर दें। अगले किसी लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मजीद इसके अंदर मेटाफेज, एनाफेज और टीकोफेज मौजूद है। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह।